पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, सो आई थिंक वी हैव टू बिगिन विथ फर्स्ट। कौन सा चैप्टर स्टडी करें? हमेशा डिफिकल्ट चैप्टर से शुरू करूं, मेरा तो ये होता है। डिफिकल्ट एज इन जो थोड़ा टफ जा रहा है, बिकॉज but some people might have other strategy altogether. They begin with the easy one and then they complete the easy ones and then they get a sense of accomplishment and then they move on to the last में थोड़ा सा difficult वाले chapters रखते हैं. तो that's totally on the individual call, whether you would like to finish the easy ones first and then move on to the difficult one. Let's say the smaller chapters first and the bigger chapters at a later stage. तो एक रहता है कि हाँ चलो इतने numbers कम हो गए हैं, so that is also there. Some might begin with the difficult first and then quickly at the end you do the simpler and shorter ones. Because उसका weightage 11 with option है और 8 without option है. Yes, Aisha. Okay, so अच्छा और क्या question है गणेश का? Biotech then 2495 this all chapter to do on. Oh my god, so many chapters to do on your own, I think. But हमने क्लास में तो सब किया है ना, सिर्फ deleted portions को 14 नहीं है समीक्षा, 14 पूरा deleted है, 14 deleted है और काफी कुछ डिलीट, 14 तो पूरा चैप्टर डिलीटेड है, हम अभी 13th पर है। हाय आयुष, गुड इवनिंग। चलो अभी आयुष भी आ गया, लेट्स बिगिन अडेप्टेशन। वी हैव टू बिगिन विद वी आर डूइंग 13 चैप्टर, दिस इज द 13th चैप्टर, 14th चैप्टर इज ओमिटेड एंड द लास्ट चैप्टर इज 15th, खत्म। इसके 15 चैप्टर्स है टोटल, आपको 15 में से 14th वाला पूरा डिलीटेड है, और आई थिंक इसके पहले भी हमने काफी चैप्टर्स किया है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक है, बाकी सब डिलीटेड है, ओमिटेड है, तो उससे आपका 3-4 चैप्टर्स तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। लेट्स बिगिन नाउ। व्हाट इज अडेप्टेशन? आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी familiar with the term adaptation, right? It's how you adapt, how you adjust. Yeah, we will do that, Ayush, we will do that. I am telling you time and again, जैसे हमारा पोर्शन होगा then we will take few sessions on important topics, important question, how to write the paper, how to manage your time. तो 1-2 लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो adaptation is what adjusting to the changing environment, right? To change can be either structure wise, it can be either internal or in the behavioral attitude that enables an organism to survive and reproduce in that habitat. So that is what an adjustment or adaptation means, ठीक है। तो adaptation can be over a धीरे over a longer period of time, and it can also lead to evolutionary changes also. Adaptation can also lead to what? Evolutionary changes also, right? So many adaptations have evolved over a long time, and it has been one of the reason for evolution, and it is also one of the reason for genetic variations, ठीक है। Examples जैसे presence of thick covering or thick layer on the leaf structures, waxy cuticle करके there is a layering on the leaves surfaces. Okay, then plants have also यहाँ पे plants के हम example ले रहे हैं, sunken stomata which help to minimize the water loss through transpiration. What is transpiration? Loss of water through stomata. Stomata are what? These are organs, these are organelles, a part of the leaf which is open during the daytime for facilitating entry of carbon dioxide into the leaf. Carbon dioxide is required for the plant to carry out photosynthesis to make sugars, ठीक है। तो अब लेकिन पूरा दिन स्टोमेटा खुला रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ रहा है, लेकिन फिर वाटर लॉस भी हो रहा है ना, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो द प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड इन सच अ वे, दे हैव एडजस्टेड एंड अडेप्टेड कि वो स्टोमेटा का शेप थोड़ा मतलब थोड़ा से मॉडिफाई हो चुका है, और अंदर डीपली सिचुएटेड संक हो गया है, लाइक दैट, यू नो, so that carbon dioxide gas can come inside but minimizing the loss of water molecule. So like that, one of the adaptation in the plants. Giraffe ki lambi neck, you can say, also we can consider that in adaptation. Another example is this crustacean path, this
crustacean acid metabolism plants. Okay, they enable their stomata to remain closed during the day. So different species of plants have come up with certain adaptations or adjustments which are helping the plant to save on water. तो ये भी एक तरह का behavioral, structural, morphological adaptation है. Another example is desert plants like Opuntia. They have no leaves. Instead of leaves, they have spines. They have thorns. Usually, जितने भी desert plants होते हैं, उनके पास leaves नहीं होती, उनके पास spikes, thorns होते हैं. To reduce the loss of water vapor. और उनका photosynthesis पे leaves तो है ही नहीं, thorn से नहीं होता है, stem से होता है, which is green in color. ठीक है, mammals में भी ऐसे होते हैं adaptation, something known as Allen's rule. Okay, mammals from colder climates have shorter ears and limbs to reduce the heat of loss. तो छोटे organs है, छोटे parts है, तो heat exerting from the body will be less. So the animal can conserve the heat energy in colder climates, in colder regions. Okay, so that is one of the example in animals. Aquatic mammals जैसे seals होते हैं, उनका एकदम body thick होता है ना, thick layer of fat is there below their skin that acts as an insulator and it reduces loss of body heat because even they live mostly in the colder regions. Yes. Even they have adapted and nature has made them in such a way, and over a period of time maybe those structures modified and adjusted to their environment. So this is what we understand by adaptations. ठीक है, तो अब we move on to move on to adaptation. Brings us to what is population. Population is what? Very simple. A group of individuals of the same species which is living in a given geographical area. Okay, they are sharing and competing for the same resources and the potential to reproduce. ठीक है ना, जैसे एक कोई एरिया में एक birds की population हो गई, let's say eagles. They are living as a community. In one particular region, deers are living as a community. They are living in the same geographical area, competing and sharing the same resources, and potentially they are doing that for establishment of their species and reproduction. ठीक है, so population का definition आपको पता होना चाहिए. Example is your okay. Some of the examples are like the cormorants in wetland, rats in the abandoned dwelling, teakwood trees in the forest track, bacteria in a lab culture plate, lotus plants in pond. Okay, so population ecology, that is what we are going to see forward, is an important area of ecology, and it's linked ecology to population, genetics, and evolution. So it is not that we are discussing only about the ecosystem and habitat and niche, we are also discussing the people living inside it. Okay, the population and the communities which come under that. So ecology is basically having all these factors into consideration. Okay, so with population, we come to some of the very important terms with respect to your exams also. Most of the times they are asked, what is mortality? What is natality? Mortality is death rate. Natality is birth rate. Okay, how population, what are the characteristics of population? Population density, age pyramid. तो ये कुछ features है population के जो हमें समझना है. Beginning with population density. इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? Density से क्या समझ में आता है? Density, population density. Any idea? Any guess? Density क्या होता है बच्चों? Okay, large population. Good. I was expecting this. Mass upon volume, but यहाँ पे population को हम किस इससे बोलेंगे? Volume तो समझ गया, area है ना? Volume means जगह. Either you can population के terms में आप volume बोलो या फिर per unit area भी बोल सकते हो. Number of people. तो mass में we will consider what? Number of people living in that particular area. Let's say 10 square feet एरिया है, तो उसमें लेट्स से 10,000 लोग रह रहे हैं एग्जाम्पल. तो ये क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, वी कैन गेट पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, यस, एक स्पीशीज के कितने लोग हैं इन दैट स्पेसिफिक एरिया. गुड.
गुड मुस्कान, ये श्वेता, यस ओके गणेश, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। बर्थ रेट क्या होगा फिर? पॉपुलेशन डेंसिटी विल हैव इफेक्ट, आई मीन विल बी अफेक्टेड ड्यू टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी बदलती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कितने बर्थ्स हो रहे, कितने डेथ्स हो रहे हैं, बराबर। बर्थ क्या है? कितने लोग बर्थ, आई मीन दे आर गेटिंग बोर्न, यस, with on the total number of population. Example देखो यहाँ पे आप ले सकते हो, in a pond there are 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added. तो current population कितनी हो गई? 28. तो birth rate कितना हुआ? birth rate कितना हुआ? हाँ, 20 ऑलरेडी थे, अब इसमें से 8 और पैदा हुए, you can say are born or are, you know, they reproduce and 8 new flowers of lotus came. तो टोटल कितने हो गए? 28, ठीक है, टोटल 28 हो गया अपॉन, सॉरी कितना था, हाँ नहीं 8 हुआ। रेट हम रेट कैलकुलेट करेंगे, यूजुअली इट इज बाय द करंट पॉपुलेशन एंड the existing number of individuals, ठीक है। तो 8/20, 20 थे, नए कितने आ गए? 8, नए कितने आ गए? 8। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 0.4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो बर्थ रेट यू कैन कैलकुलेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेटालिटी। व्हाट? नेटालिटी। कभी भी बड़ा, फिलहाल जब हम ये कैलकुलेट करें ना, तो बड़ा वाला नंबर नीचे होगा डिनोमिनेटर में एंड द स्मॉलर वन विल बी ऑन द इन द न्यूमरेटर्स प्लेस। डेथ रेट भी it is how many people are dying in that particular area, in that particular population. So let's say 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died, मतलब fruit flies की बात हो रही है, during a week, ठीक है। 40 से 40 में, सॉरी 40 में से कितने मर गए? 4 मर गए। तो हम कैसे करेंगे? 4/40, कैसे करेंगे? 4/40, ठीक है, which will give you the death rate of 0.1, multiply by 100 करोगे तो you will get the percentage also. तो death rate कितना हुआ? 0.1 per week, according to the data that we have. Okay, so natality is the death rate and mortality, इसको हम mortal भी बोलेंगे, mortality is the sorry, natality is the birth rate and mortality is the death rate, ठीक है। इससे आप population density भी calculate कर सकते हो और it will affect the population density. Another factor, another feature of population dynamics is the age pyramid and then the sex ratio. Age pyramid, all of you, any idea? अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एज पिरामिड क्या होता है। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एजेस, इतने लोग यंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, सो एंड सो पीपल आर कमिंग इनटू ओल्डर पॉपुलेशन, सम ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज कमिंग अंडर द न्यूबॉर्न्स, लाइक दैट children category. So it's a representation, graphic representation of abundance of individual of different age groups. तो 3 हो जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड इन द मिडिल एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव विल बी द मिडिल एंड देन द पोस्ट, और प्री रिप्रोडक्टिव में यूजुअली बच्चे आ जाएंगे, ओके। या we are coming to that numbers and all that stuff, we are coming to the formula also. Just right now we are just understanding the terms. And what is sex ratio? All of you might be aware, it's a population always will have a sex ratio, that is number of males and number of females divided by the total number of population. तो अगर total number of population 1000 है upon let's say 40 are males, so this will give you the number of males in that particular population percentage, ठीक है। तो इसका और फीमेल्स का करोगे तो will give you the sex ratio, ठीक है। Let's begin now in a bit detail. Okay, so this is what I was talking about, the age pyramid. Age pyramid is what? The population is divided into three categories: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. ठीक है, अभी मुझे बताओ इसमें से प्री रिप्रोडक्टिव कौन सा होगा?
कहाँ पर होगा? Which area, which region you can say? Okay. देखो, ये ग्राफ का लाइन है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसको रिप्रेजेंट ऐसा जॉइन करके किया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पिंक वाले की भी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। बेसिकली देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स, ठीक है, ट्रायंगुलर, बेल एंड द यू शेप टाइप। ओके, आई विल शो यू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे बेस्ट एज पिरामिड क्या होती है किसी भी कंट्री और किसी भी कम्युनिटी के लिए? ट्रायंगुलर, ठीक है। इसमें यंग ज्यादा होते हैं, यंग और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे इंडिया को बोलते हैं ना, इंडिया इज हैविंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एज यंग पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल कनाडा वगैरह में, कनाडा के जितने भी लोग हैं सब बुढ़े हो गए, इसलिए यहाँ पे वहां पे माइग्रेशन और इमिग्रेशन काफी मतलब वहां के लोग बुला रहे हैं दूसरे कंट्रीज के लिए, दे आर हायरिंग, दे आर कॉलिंग skilled workers, skilled professionals, and then they are given citizenship, जापान में भी एग्जैक्टली तो वहां की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बुढ़े पर आ गई है, तो उनको काम करने के लिए यंग पॉपुलेशन चाहिए। तो ट्रायंगुलर एज वाला पिरामिड है ना, इट रिप्रेजेंट्स यंग और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो उनका जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ही थोड़ा फ्रैक्शन है, और जो यंग और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। फिर एक होता है बेल शेप। बेल शेप क्या, आई विल शो यू द पिक्चर। ये स्टेशनरी पॉपुलेशन है जहां पे ना ग्रोथ ज्यादा हो रही है ना डेथ हो रही, तो इट्स लाइक अ स्टैग्नेंट और स्टेबल पॉपुलेशन। और ये उल्टा है, यू वाला शेप इज उल्टा, रिप्रेजेंट्स डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, जैसे जापान और कनाडा की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ओल्ड पीपल आर मोर एंड यंग पीपल आर लेस। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो दिस इज अ बेस्ट थिंग फॉर एनी कम्युनिटी और एनी कंट्री, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। स्टेबल इज लाइक ना ग्रोथ हो रही है ना डेथ हो रही है, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्टेबल, नो ग्रोथ, नो रिप्रोडक्शन, नो इंडिविजुअल्स आर गेटिंग एडेड। और डिक्लाइनिंग में उल्टा है, डिक्लाइनिंग में यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब ऑब्वियसली बच्चे जो यंग में जाएंगे तो वो ज्यादा है ना, ग्रोथ इज वेरी मोर, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, और जो बुढ़े हो गए वो बहुत ही कम है। इन सब में आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड आउट है, स्टेबल है, इसमें उल्टा है, birth is very less and death is also almost there, I mean old people are there, और जो रिप्रोडक्टिव है वो बहुत ही कम फ्रैक्शन है, ठीक है। So 3 types of age pyramids are there. Okay. So how a population, let's say if we are talking about the triangular one, what are the factors that can lead to a growth of any population? 4 factors that we need to know. सबसे पहला तो हमने अभी डिस्कस किया वो birth है, that is natality, number of births in a population during a given period of time. Also, the death rate will also determine mortality, the number of deaths in a population during a given time. Then, तो ये तो बर्थ और डेथ हो गया, और नेक्स्ट फैक्टर इज इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, इमिग्रेटेड या फिर माइग्रेटेड भी बोल सकते हैं, बट माइग्रेशन के 2 टाइप्स आ जाएंगे, ई और आई। देखो यहाँ पे दूसरा है इमिग्रेशन, तो कौन सा माइग्रेशन की आप बात कर रहे हो, ई या आई, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है ना। माइग्रेशन कैन भी आप अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हो तो माइग्रेट कर रहे हो, आप दूसरे कंट्री में किसी कंट्री के अंदर आ रहे हो तो भी एक माइग्रेट ही कर रहे हो ना आप। माइग्रेट इज जस्ट ट्रैवलिंग, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू द अनदर, बट कहाँ से माइनस हुए और कहाँ पे प्लस हुए वो भी ध्यान में रखना है आपको। तो माइनस हुए आप किसी कंट्री से, यू लेफ्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री, यू लेफ्ट दैट पर्टिकुलर हैबिटेट एंड यू हैव गॉन समवेयर एल्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, सो यू हैव एमिग्रेटेड, आपने अपनी कंट्री छोड़ दी। अब छोड़ने के बाद आप जाके कनाडा में बस गए, तो आप वहां पे क्या हो गए, आप इमिग्रेंट हो गए, आप कनाडा में जाके बस गए, आप इमिग्रेंट हो गए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझा ऑल ऑफ यू द डिफरेंस बिटवीन एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन? both are migration, so these will affect a growth of any population, natality, mortality, immigration and immigration, ME and IN.
So this is the formula. ये formula याद रखना, MCQ में आता है कभी कभी. So population density increase कौन करेगा? Birth and immigration ना. वो कंट्री में बर्थ हो रही है और लोग बाहर से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हैबिटेट में लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स हो रहे हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? लोग मर रहे हैं और लोग छोड़कर जा रहे हैं वो आपकी कंट्री या आपका हैबिटेट, तो इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी विल डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी. Okay, so this is how you can calculate by assigning numbers. If n is the population density, t is time, and then the density will be what? The number of population per you know, I'm displaying मुस्कान, ये देखो, रुको जो मैं स्क्रीन वो कर लेने दो. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो किसी भी तरह, थोड़ा एक आइडिया रख लो. MCQ में कभी पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये. You want to determine the population density, that will be population into time plus bracket B stands for the birth rate plus 1 minus D stands for the death rate and plus immigrants number of individual who immigrated, and E stands for number of people who emigrated. ठीक है, तो ये बेसिकली this is D plus E is this and B plus I is this, है ना, B plus I is this. ओके, तो आप ये दोनों को माइनस करके जो फैक्टर बचेगा उसको आप एनटी में ऐड करोगे तो दैट विल गिव यू द पॉपुलेशन डेंसिटी. दिस इज एट अ पर्टिकुलर टाइम, at a particular time, at a given time. जैसे पर यूनिट एरिया, पर स्क्वायर फीट, पर करते हो ना, पर मिनट, पर सेकंड, तो अभी यहाँ पे तो पर सेकंड, पर मिनट या पर एरिया ना, तो at a specific time plus 1 factor is added. ठीक है, you just have to know the formula, that's it. सॉल्व करने नहीं आएगा सम्स, डोंट वरी, वो यूजुअली नीट वगैरह में आएगा. अभी बोर्ड्स में अगर आपने फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत याद है कि क्या है, कैसा रिप्रेजेंटेड, दैट वुड बी इनफ. ठीक है, तो ऑब्वियसली सो दिस इज योर इंक्रीजिंग वाला फैक्टर, दिस इज योर डिक्रीजिंग वाला फैक्टर. इफ B plus E is more, तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज. इफ D plus E is more, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी. ठीक है ना, अदरवाइज. समझा ऑल ऑफ यू मोटा मोटा अबाउट द फॉर्मूला? Any questions? What about others? Shweta, Rituja, Aisha, Durvankar, Ganesh, Samiksha. Okay, Shweta. Oh, sorry, Rituja. अच्छा, मुझे है ना याद दिलाना 5 मिनट्स क्लास एंड करने से पहले 40 को 40 या 40 के अराउंड कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करना है. ठीक है, दिस लीड्स अस टू ग्रोथ मॉडल्स. दो टाइप के ग्रोथ हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर समथिंग नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ. अभी आप ये देख सकते हो, ऐसा कभी हो सकता है जैसे जैसे टाइम जाता जाए पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता जाए, बस होता जाए. ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब रिसोर्सेस, अच्छा पहले तो एक आइडिया ले लो दिमाग में. फूड एंड स्पेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉपुलेशन टू ग्रो, राइट? खाना और जगह, हेल्टर एंड व्हाट यू से फूड एंड शेल्टर, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉपुलेशन टू ग्रो. बट ये लिमिटेड है ना? ठीक है, अगर रिसोर्सेस एकदम अनलिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड मतलब जगह ही जगह है और खाना ही खाना है, तो क्या होता है? इट विल शो इट्स फुल इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर. तो ग्राफ फिर कैसा जाएगा? ऐसा, बस बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. The population will grow in an exponential or geometric fashion. मतलब जब भरपूर रिसोर्सेज है, इन अनलिमिटेड जगह एंड फूड, स्पेस एंड फूड. ठीक है, बट इज दिस पॉसिबल इन नेचुरल सेटिंग?
ये तो वो theoretical हो गया, नेचुरल सेटिंग में पॉसिबल है. There is no population in nature which will have unlimited access to resources, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, कौन नहीं मानता यहाँ पे, वो बताओ. ऐसा कभी हो सकता है किसी भी पॉपुलेशन को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले इन टर्म्स ऑफ फूड? शेल्टर तो ठीक है, जगह तो हो जाएगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फूड स्पेशली नॉट एट ऑल, राइट? या बट कभी भी नहीं होगा. लिमिट मतलब सफिशिएंट एक होता है सफिशिएंट और एक होता है अनलिमिटेड. अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट फॉर दैट स्पीशीज टू सर्वाइव, दैट्स वन स्टोरी. एंड हैविंग अनलिमिटेड मतलब वो एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करते ही जाए करते ही जाए करते ही जाए. ठीक है, तो वैसा पॉसिबल नहीं है. सो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है? कंपटीशन, है ना, among individuals for limited resources. So then the concept of fittest survive will come into picture, है ना? Fittest individual survives and reproduce. So in a nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. So this is known as carrying capacity. So usually nature में this type of graph exists, logistic growth, because no population will have access to unlimited resources. एक limited मतलब एक sufficient बोलते हैं, sufficient या enough resources है उसके पास, उसका एक अच्छा खासा population reach करने के लिए, और उसके बाद फिर वो grow नहीं कर सकता है. मतलब वो तो फिर एकदम what you can say ideal condition हो जाएगी, but naturally it does not happen, it does not happen. तो देन तो पहले ग्रो होता है पॉपुलेशन, विद टाइम ग्रो 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 ग्रो, एक स्टेज आता है बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, फिर एक टाइम के बाद है ना मतलब डिक्लाइन तो नहीं, एक स्टेशनरी फेज आ जाता है, प्लेटो फेज आ जाता है. ह्यूमंस में सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो ह्यूमंस का. So there is a phase of pre-reproductive, and then there is a sigmoid. This is a sigmoid curve basically. तो there is a fashion of increasing, and then हमारे एज में भी एक एज आता है कि प्लेटो फेज आ जाता है, तो उसके बाद ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. तो सिमिलरली यू कैन कंसिडर दिस फॉर अ पॉपुलेशन साइज ऑल्सो. ठीक है, इट इज नोन एज कैरिंग पॉपुलेशन. सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल नॉट ग्रो. सो अ पॉपुलेशन with limited resources show initially a lag. थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ग्रो होने के लिए, इसको लैग बोलेंगे ना. दिस एक थोड़ा टाइम लग रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है, लैग. देन फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट बढ़ने लगा, एकदम बढ़ने लगा, और फिर बाद में फिर से स्टैचू बोलिए स्टेशनरी फेज और प्लेटो फेज, तो डी एक्सेलरेशन. एंड फाइनली डिक्लाइन तो नहीं, बट इट्स लाइक अ डेडलाइन, खत्म बस. फाइनली एन एसिम्प्टोट बोलते हैं उसको, a plain line, a plateau line like that. Okay, so this logistic growth is proposed by one of the scientists known as, basically he gave this theory which is there in nature, Warhol's Pearl logistic growth. Okay, just need to know the logistic growth and the name of the scientist, and a little bit about the pattern of logistic growth, which is very different from the exponential growth. ठीक है, ये exponential है और ये है वो unlimited resources. This is enough resources for maintaining a maximum possible number of species in that particular, members in that particular species. खत्म. Last topic, population interaction. Very simple, very nice topic. Limit या खत्म हो गया. I mean उसके बाद there will be no growth. I will tell you the exact dictionary meaning क्या है उसका. Just give me a second. Anyone can find for me a symptote. Straight line, straight line. मतलब वो फिर अब उसके आगे ना बढ़ रहा है, सॉरी, ना कम हो रहा है ना कुछ नहीं, इट्स लाइक फिर खत्म ही हो गया. स्ट्रेट लाइन बेसिकली एसिम्प्टोट. Also accounting to infinity, but infinity का हम उसमें we will not consider the angle, we will just take it as a straight line. So what is population interaction?
Come on, anyone would like to read and just tell us in 1 or 2 lines? Simple meaning. By the name you will get to know what is happening in the concept. Anyone would like to? You can take the help what is there on the screen. Can anyone tell me what is population interaction with the definition which is there on the screen? पिक करूं मैं? अगर आप लोग हाथ ऊपर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. चलो जल्दी. ओके आयशा. I think it is the interaction by living and non-living being, how they use each other to sustain maybe. Okay, good, very good. Anyone would like to add? Food chain, something like how all we are dependent. Very good, Muskan. Good. Anyone else? The interaction between a non-living thing जिसके सहारे किसी living thing की मदद हो maybe. Okay. Acha. Abhi, so basically interaction means different communities, different species, different organisms will come into, they will be dependent, interdependent on one another. तो इसमें है ना population interaction में हम सिर्फ living things के बारे में we will focus more. Okay. Obviously living things are dependent on the non-living factors we saw na, temperature, light, water, soil and all that stuff. So to define population interaction, जैसे आप लोगों ने बोला, certain group of species living in a certain ecosystem, they have an effect on one another. एक दूसरे के ऊपर असर होगा, like that. So this phenomena affecting nearby living and non-living beings are called population interaction. ठीक है, तो आपस में दो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, स्पीशीज का इंटरेक्शन होना जिसका असर बाकी के पॉपुलेशन पे होगा आसपास. इट कैन बी लिविंग और इट कैन बी अ नॉन लिविंग एंटिटी. ओके, सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन इंटरेक्शन. यू शुड नो द डेफिनेशन एंड नाउ you should know the types of population interaction, जो हम एकदम short और simple way में इसको conclude करेंगे. There are, I think, 6 types. You can see on the screen. Parasitism and predation. Mostly they are come into same category. Competition, commensalism, mutualism, amensalism. पहले तो मैं parasitism और predation simple to understand. First we will see the definition, then we'll move to the examples. Come on, who will tell me parasitism and predation? Very simple. आपने schools में या कभी किधर पढ़ा होगा. Parasitism, parasites, predators, prey, क्या होता है? How populations are interacting when they are doing parasitism and predation. Anyone would like to? With the help of the point on the screen. Come on. Topmost animal, Ayush is saying. Okay, very good, Ayush. Good. Apex predator जैसे. Good, Ganesh. ठीक है, गुड, थैंक यू बोथ ऑफ यू. तो देखो इसमें क्या होता है ना, पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन में ओनली वन, यहाँ पे हम इंटरैक्शन की बात करें, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द अदर स्पीशीज और द एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट. तो एक जो पैरासाइट होता है या जो प्रेडेटर होता है सिर्फ उसको फायदा हो रहा है ना, उसको फायदा हो रहा है. बाकी लोगों को क्या हो रहा है, जिनके ऊपर वो अटैक करते हैं, प्रेडेटर प्रे के ऊपर अटैक करता है, पैरासाइट होस्ट को अटैक करता है, तो उनको क्या होता है, वो तकलीफ में आ जाते हैं. दे आर डेट्रीमेंटल टू दीज आर डेट्रीमेंटल टू अदर स्पीशीज, दैट इज दे कॉज हार्म टू देयर होस्ट और टू देयर प्रे. प्रेडेटर है तो वो प्रे को मार के ही खाएगा ना, पैरासाइट है तो वो होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, अटैक करेगा, तभी इट कैन बी एबल टू टेक द न्यूट्रिशन, राइट? एग्जैक्टली. या ओमनिवोर्स का एग्जांपल ले सकते हो. तो ओनली वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड इन पैरासाइटिज्म एंड प्रेडेशन. ओनली वन स्पीशीज, जो पैरासाइट है और जो प्रेडेटर है वही बेनिफिट होंगे. कंपटीशन नेक्स्ट.
both species lose in their interaction with each other. दोनों compete कर रहे हैं एक ही food source के लिए या एक ही जगह के लिए, हाँ है ना? तो दोनों parties they are subject to lose and they are subject to win. Both the parties can lose or both the parties cannot win. Sorry, both the parties are at some or the other loss because they are competing for a similar resource, for a similar food source, or for a similar geographical area. Commensalism क्या है देखो, एक species benefit होती है और दूसरे species से जो जिसके ऊपर ये commensalism हो रहा है उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, न्यूट्रल है वो. We will see the example, then you will understand. The species, only one species gets benefit, the other जिससे interaction है उसको ना benefit हो रहा है ना harm हो रहा है, वो neutral है. Mutualism, दोनों parties एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे symbiotic association rhizobium और legumes का है ना. Rhizobium is giving nitrogen, fixed nitrogen to the plants, legumes are giving helter and shelter and food to the बैक्टीरिया, टू द राइजोबियम. तो दोनों एक दूसरे को नफा पहुंचा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, बेनिफिट. तो म्यूचुअलिज्म, दैट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज म्यूचुअलिज्म. अमेंसालिज्म, one species is harmed whereas the other is unaffected. We will see the example now. So just know amensalism, one species is harmed, okay, and the other species, I mean two species are interacting, एक को नुकसान हो रहा है और जो दूसरा है उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, it is neutral. Let's begin with example. Amensalism से उल्टा से शुरू करेंगे. Amensalism, okay. The most powerful animal of the large organisms inhibits the growth of the other lower organism, जैसे cat and rat. अभी हमने definition में क्या पढ़ा? Mutual fund, yeah, you can say that, Ayush. So who is getting harmed and who is not affected? Amensalism में cat, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना. और who is getting rat? Yeah, exactly. Understood? Most powerful animal of the large organisms inhibit the growth of other lower organisms. इसको बोलेंगे which type of interaction? Amensalism. Mutualism, तो देखो एक species को नुकसान पहुंच रहा है, ये rat, इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं, और cat को ना फायदा पहुंच रहा है ना नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब उसको क्या ही है, like that. Mutualism में क्या है, दोनों पार्टीज को फायदा, दोनों पार्टीज को फायदा, इंटरैक्शन फेवरेबल टू बोथ एंड ऑब्लिगेटरी, जैसे कि क्रोकोडाइल एंड बर्ड. एनी आइडिया व्हाई क्रोकोडाइल एंड बर्ड? आजकल के बिल्लियां खलेज यस आयशा, बट नेचर तो ऐसे ही है ना, नेचुरली कैट्स आर डिजाइन्ड टू ईट रैट्स, ठीक है. So mutualism is this, crocodile and bird, then the gut bacteria, बहुत सारे examples है आपके textbook में भी, gut bacteria and the ruminants, rhizobium and the leguminous plant. और क्या दे सकते हो आप, दोनों पार्टी को फायदा है, ऐसे बहुत सारे interactions है, examples है which you can give, okay. Commensalism में एक पार्टी को फायदा पहुंचता है, दूसरे पार्टी को ना फायदा ना नुकसान, तो जीरो. Population 1, the commensal will benefit while the other is not affected. उसको ना फायदा ना नुकसान, जैसे कि sucker fish on shark. तो है ना, शार्क बड़ी फिश है, उसके नीचे ना छोटे छोटे सकर फिश होते हैं जो छुपते हैं अपने प्रेडेटर्स से. कोई भी बड़ी मछली आके उनको खाना जाए तो शार्क के नीचे छुपते रहते हैं, ओके, वो नीचे ऐसे रहते हैं लाइक दैट. तो उनको फायदा पहुंच रहा है, शार्क को कुछ फायदा, मतलब शार्क को ना फायदा पहुंच रहा है नुकसान पहुंच रहा है, तो कमेंसालिज्म. कंपटीशन में दोनों को नुकसान है भाई, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ ईच अदर बाय द अदर, जैसे कि बर्ड्स compete with squirrels for nuts and seeds, है ना. बर्ड्स को भी नट्स और सीड्स एंड स्क्विरल्स आर आल्सो फॉर नट्स एंड सीड्स, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं. पैरासाइटिज्म में एक स्पीशीज को बेनिफिट है, जिसके ऊपर वो अटैक करते हैं उनको नुकसान है, नेगेटिव. तो पॉपुलेशन 1, दैट इज द पैरासाइट, which is generally smaller than the 2, the host, okay, जैसे कि ascaris,
tapeworm in the human digestive system. Parasites में you can give various examples: malarial parasite, Ascaris, and Entamoeba histolytica. All of these are parasites only. Okay. Predation में you just give me examples. One species is benefited, another is at loss. The predator is generally bigger, larger than the prey. जैसे कि lion preys on deer. Simple. All of you. Amensalism, mutualism, commensalism, competition, parasitism, predation. You have to know the definition and at least 2 examples. That's it. अगर आया तो 2 से 3 मार्क का एक किसी पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, या 2 मिला के 3 मार्क का शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो लोग. हाँ, तो मुझे ये बताना था. थैंक यू गणेश. So we are done with the chapter. In the next class we'll begin with the last chapter, that is chapter number 15. ओके, ये मैंने ऐसी स्लाइड इंक्लूड कर दिया है. आप पीडीएफ रेफर करोगे तो आप देख सकते हो उसको. इट्स द रेपिटेशन ऑफ द दिस स्लाइड. सो बेसिकली गणेश, जैसे मुस्कान और नंदनी से हमारी बात हुई है रिगार्डिंग नीट. तो आप में से कौन कौन है नीट के ग्रुप में? गणेश है, आई थिंक करण है क्या? चलेगा. हाँ, गणेश और कौन है? समीक्षा है, ऋतुजा भी है, श्वेता. ओके, श्वेता, समीक्षा, नहीं ऋतुजा नहीं है. ठीक है, श्वेता, समीक्षा और गणेश. तो आप लोग इस साल नीट देने वाले हो? दीदी मैंने नहीं सुना आपने क्या बोला. अरे मुस्कान, नीट के बारे में अभी बस मैं वही डिस्कशन शुरू करने जा रही हूँ. जैसे आपकी और नंदनी का मुझे मैसेज मिल गया है कि आप लोग, यू गाइज आर प्लानिंग टू टेक इट इन द नेक्स्ट ईयर. व्हाट अबाउट समीक्षा एंड श्वेता एंड गणेश? क्विकली मुझे अनम्यूट करके फटाफट बोलो. बेसिकली मुस्कान और नंदनी भी ये साल देंगे, बट सीरियस वाला अटेम्प्ट दे विल गिव इन द नेक्स्ट ईयर. तो एक्चुअली बिकॉज मैं आप लोगों से यही डिस्कस करना चाह रही थी कि ऐसा है कि आपका भी बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा जब तक बोर्ड्स नहीं हो जाते तो आप नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को थोड़ा साइड में रखना चाहते हो. फिर एक बार बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो गया तो जो भी 1 महीना बचा है तो उसमें मैं रोज तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी एंड देन यू विल प्रैक्टिस. ऐसा है आप लोगों का थॉट? गणेश, श्वेता एंड समीक्षा. या फिर आप मैं अभी भी देती रहूं? I did that only now. क्या did that? तो मैंने रिप्रोडक्शन यूनिट हमारा हो गया है. आप बाद में भी जब आपका फ्री टाइम होगा, आपको ऐसा लगेगा अभी मैंने नहीं दिया है, तो आप आपके बोर्ड्स के बाद भी दे देना. तो हम ये सोच रहे थे कि फिलहाल जो प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ये वाला एक जेनेटिक्स वाला प्रैक्टिस सेट देने वाली थी ये वाले मंथ एंड में, क्योंकि मैं हर मंथ एंड में देती हूँ ना. तो फिर हम वही डिस्कस करने लगे कि आपका भी बोर्ड्स है तो बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. तो इस वजह से वी कैन, इफ यू गाइज वांट, आप लोग एग्जाम्स तक का हम पॉज कर सकते हैं नीट प्रिपरेशन, और फिर जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे 4-5 दिन का ब्रेक लेके हम फिर हर दूसरे तीसरे दिन में प्रैक्टिस सेट्स भेजूंगी और फिर आपको वो सॉल्व करना होगा. फिर आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो. कैसा रहेगा गणेश, समीक्षा? क्योंकि मुस्कान और नंदनी का तो आई थिंक हम ऐसे ही करेंगे ना. मुस्कान, हाँ देखो, अच्छा एक लास्ट लाइन. आप ये साल सीरियसली दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो एक सेकंड स्टोरी है, बट दो क्योंकि इससे क्या होगा आपको, है ना, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइम कैसे मैनेज करने का है, मैं मतलब बहुत सारी चीजें आपको लर्न होगी. आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट, एक बोलते ना रफ अटेम्प्ट बोलो, जैसे भी बोलो, तो आप और 2-3 अटेम्प्ट्स भी अगर सोच रहे हो फ्यूचर में देने के लिए, और यू नेवर नो ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, आपका 12th का बायो और बाकी चीजें इतनी अच्छी है, आपका फर्स्ट गो में इतने अच्छे मार्क्स आ जाए, यू नेवर नो ना. आपने अच्छे से 12th के लिए अच्छे से पढ़ाई की, थोड़ी सी और मेहनत लास्ट के 1 महीने में और लगेगी, एंड देन यू गिव इट 1 शॉट, और वो 1 शॉट में एकदम बोलते ना छक्का लग गया, तो ये भी पॉसिबल है. तो उससे आपको क्या मिलेगा? आइडिया मिलेगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं टाइम पे बराबर सॉल्व कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, और यू नो टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट, कौन से क्वेश्चन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक से नहीं आए. तो जब तक आप बैठोगे नहीं, फील नहीं लोगे ना उसका, तो वो डर नहीं निकलेगा, और एक अटेम्प्ट देने के बाद फिर सेकंड के लिए आप है ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा सकोगे.
12th का रहेगा तो फ्रेश फ्रेश याद भी रहेगा। वेरी गुड पॉइंट गणेश, एग्जैक्टली। तो ये भी एक चीज है ना। तो 2 फर्स्ट अटेम्प्ट, चाहे आप 1-2 सीरियस अटेम्प्ट बाद में अच्छे से पढ़ के दोगे, वो अच्छे से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन जैसे भी है, आप ये अटेम्प्ट एक बार दे के रहो, तो आपको काफी सारी लर्निंग्स होगी उसमें। तो हम फाइनल डिसाइडेड, हम मार्च तक का पॉज लेते हैं, चलेगा ना सबको? और फिर उसके बाद में मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपको यूनिट्स पे प्रैक्टिस सेट भेजूंगी, आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि फिर अभी आप लोग भी शायद नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नंदनी और मुस्कान ने ये इशू पहले ही रेज किया है, विच इज वेरी वैलिड। आप लोग ने कम्युनिकेट किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर मैं तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं सब कर रहे हैं और आप प्रेशर में हो, तो ये कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन योर 12th। नीट इज नथिंग बट 12th ओनली। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, नीट इज नथिंग बट 12th ओनली, ठीक है? समीक्षा, प्लीज, मतलब मुझे ऐसा, मतलब वो मत समझना कि मैं रूड हो रही हूँ। फिर ये कैसा हो जाएगा, मालूम है, दो कश्ती में सवार होना, या 2 नैया में, एक पैर ये कश्ती में, एक पैर ये कश्ती में रखना। तो फिर यूजुअली हम, ऐसा होता है ना, यहाँ के होते हैं ना वहां के होते हैं। अंडरस्टैंडिंग समीक्षा? तो टाइम लो, सोच लो अच्छे से कि मुझे क्या करना है, मुझे JEE करना है या नीट करना है, क्योंकि JEE के लिए फिर आपको मैथ्स भी अच्छे से करना पड़ेगा। गुड आयुष। ठीक है। और कुछ? खत्म करें क्लास? अभी 10 मिनट का ब्रेक लो, आपकी फिजिक्स होगी ना अभी, और फिर उसके बाद में क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। चलेगा ना श्वेता, नो प्रॉब्लम। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा ही नहीं कि नीट और JEE इज डेडलाइन। साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। You will explore when you grow, when you do your 12, when you move to college, then various opportunities will come in front of you, and you have to choose one thing or the another. बिना चॉइस के आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे ना? ठीक है, चलो, सॉर्टेड एवरीवन। हाँ, सीटी नीट चलेगा, सीटी इज स्टेट लेवल, नीट इज नेशनल लेवल, ठीक है? चलो, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, वो हम करेंगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर।